हेलो ललिता, मेघा, जय गुरुदेव, बेबी इज फुल ऑन स्विंग। हेलो, क्या नाम है बच्चे का? व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? जय गुरुदेव। सुदर्श। हाय सुदर्श, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। So cute, so nice. ललिता, ललिता जी आप भी वीडियो ऑन करके हमें अपनी फेस दिखा सकते हैं। सो कि वी हैव 2 minutes एटलीस्ट, तो यू कैन गेट रेडी, कैमरा एडजस्ट कर लें, जगह अपना देख लें। आई विल ऑल्सो प्रिपेयर। आज क्या कराना है कि They have network issues, so if I on the video, it might lag. Lita, okay, you had a network issue. Yeah, everyone is facing network issue. My last class, the Wi-Fi was down, so I have to use my mobile hotspot. Even I want to say this, network may get disconnected. Hadi. Because of Hyderabad, I think Hyderabad, so much rain is happening. Flood is there. Anyway, how, Lalita, from where you joined? I'm from Bangalore. Ji. From Bangalore. Okay. So, how was the session yesterday? You attended? How you felt? It was very nice. I wanted to. It's like I missed out few points, so I wanted to know if I can have the access for the recorded video or the PPT. Yeah, there is nothing in the PPT actually. It's only I have written the topic so that I should not miss point. तो ऐसा कुछ है नहीं PPT में. But yeah, I have the recording of my last session, Ekadashi fasting session I took. And I will be sharing. तो it is on YouTube, so you can have a look. और उसको go through कर सकते हो. Okay, Di. Thank you so much. Sure. Welcome everyone. I hope yesterday's session had enlightened you with some of the new knowledge, and you must be excited for what is today. आज क्या है session में? So yesterday we'll do some quick revision. कल हमने क्या क्या किया था, क्या क्या discuss किया था. We'll do some revision, and I hope everyone is comfortable. I'm using English and Hindi both. अगर किसी को कुछ लगता है कि यू कांट अंडरस्टैंड हिंदी और यू कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड आई हैव नॉट ट्रांसलेटेड इट, तो उसको आप मुझे दोबारा टॉपिक को पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क मी टू ट्रांसलेट. आई थिंक सबको आता है इंग्लिश हिंदी, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है. हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, तो हिंदी तो आना चाहिए. बट एनी वे, इफ देर इज एनीवन वांट मी टू रिपीट इट, आई विल रिपीट इट आउट. ओके, तो यू कैन लेट मी नो. और दिवाकर जी, कैन यू ऑन योर वीडियो? वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा है, so that I can see कि कौन क्लास अटेंड कर रहा है, मुझे भी तो पता चले. ये स्वाति एक्चुअली ये डेस्कटॉप टाइप है तो नो वेबकैम ऑन दिस. Okay, so Divakar, from where you joined? Joined from Bangalore. From Bangalore. Okay, and how you came to know about this workshop? Through FB, I guess. I mean, there was ad in FB, and I have done like previous courses also in AOL, like advanced meditation and other things. Very nice. So I know you from that time. Okay, great, great, nice. I would be very happy to see you if you could have or have. Can you hear me? Hello. Audio went on. Now I can hear you. Yes. Can you hear me, Swati?
Can you hear me now? Am I audible? Now you Okay. All right. Hello Ganga ji, Jai Gurudev. How are you? So many. I'm good. I'm good. How are you? I'm good after so long time. And Very nice. it's almost 4 years. Yeah, it's almost 4 years. I'm Yes. glad. Glad to meet you and Nidhi ji like this. We used to work earlier in Hyderabad. We were in the same yoga studio and we took a training together. I mean, different batches. So there are, for others, I'm telling that we are all, the yoga teachers are also here with us. Yeah. So I will do a quick recap. कल हमने क्या किया था. So first we went through a video. गुरुजी का वीडियो हमने सुना था तो उससे हमें पता चला था कि क्या फास्टिंग होता है, क्या हम भगवान को खुश करने के लिए फास्ट करते हैं कि अपने लिए फास्ट करते हैं, और क्या खाना जो खाते रहते हैं साबुदाना खिचड़ी और आलू और ये सब खाते हैं, क्या वो फास्टिंग होता है? सो दैट इज नॉट फास्टिंग, दैट इज द चेंज इन द डाइट. हम अपनी डाइट चेंज कर लेते हैं सेलिब्रेट करने के लिए और अलग अलग तरह के व्यंजन का इस्तेमाल करके अपनी डाइट को ऐसे वी डू दैट. तो दैट इज नॉट फास्टिंग. फास्टिंग क्या होता है? फास्टिंग इज अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस that we go in order to give rest to our digestive system, and it is done during these auspicious time like Navaratri. Our meditation goes deeper. Our connection with this energy which is high during these Navaratri days is more we are able to connect more with that energy. तो हम जब उस समय फास्ट करते हैं तो हम हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, एंड एट द सेम टाइम्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम गेट रेस्ट. डाइजेस्टिव सिस्टम को जब रेस्ट मिलता है तो हमारी बाकी की बॉडी की हीलिंग बहुत अच्छी होती है. तो इट इज नॉट दैट यू विल ओनली लूज वेट, बट अ पर्सन हुज वेट इज लेस कैन गेन द वेट व्हाइल डूइंग फास्टिंग. तो अगर वो पर्सन जिसका वेट कम है और वो फास्ट रखता है तो व्हाट हैपेंस, उसका जो सिस्टम है वो क्लीन होगा, इंटेस्टाइन क्लीन्स होंगी, और वो थोड़ा सा भी कुछ लेगा लाइक जूस और फ्रूट्स तो उसका इंस्टेंट उसको न्यूट्रिशन एंड ही में गेन द वेट एज वेल. तो इट इज नॉट जस्ट ओनली वेट लॉस होता है, तो जिसके लिए जो अच्छा है वही होगा. सो दिस इज हाउ इट इज. तो अभी talked about the benefits of fasting. Enormous benefits are there. So other than this, our mental peace, हमें mentally बहुत clarity आती है, will power बढ़ता है और हमारे thoughts कम होते हैं, relaxed state में हम ज़्यादा रहते हैं. तो एक अलग ही state रहता है जब हम इन दिनों में fasting करते हैं. तो नवरात्रि का special क्या है? 9 nights, every day is denoted for a particular goddess, a particular deity, देवी के लिए denoted है. There is a deep, science, बहुत सारी इसकी story है, बहुत अच्छा है. You should research and read about them. अभी हम वो cover नहीं करेंगे, but I would recommend you all to read about that. हर दिन के लिए एक देवी denote करते हैं और हर दिन का एक अलग महत्व है. But what relevant for this course that I will be sharing. तो 9 days जो होते हैं नवरात्रि के, first 3 days are the days of tamas. पहले 3 दिन जो है उस दिन तमस डोमिनेट होता है. What is tamas? I'll come to it. Next 3 days rajas dominate होता है, rajas. And last 3 days sattva dominating होता है, sattva. What is rajas, tamas, sattva? What are all these 3 things? So these 3, like we discussed yesterday, वात पित्त कफ दोषास होते हैं फिजियोलॉजी के बेसिस पे. तो ऐसे ही मेंटल जो है, साइकोलॉजिकल मेंटल हमारी सात्विक प्रवृत्ति होती है, तामसिक प्रवृत्ति होती है और राजसिक प्रवृत्ति होती है. और ये संसार की जितनी भी चीजें हैं, whatever things exist in this world, सभी के लिए दिस इज देयर. सभी के अंदर राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण होता है. तो ये तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं. तीनों का होना बहुत जरूरी है, तीनों का अलग अलग रेशो होता है, बट क्या ज्यादा है क्या कम है उसके बेसिस पे वो चीज रिप्रेजेंट होती है. लाइक वी टॉक्ड अबाउट वात पित्त कफ, उसमें जो भी वाटर फायर एयर
जो भी एलिमेंट है दैट डोमिनेट होगा, तो फिजियोलॉजी फिजिकली उस तरीके के लिए होंगे। और रजस सत्व तमस दीज जब ये होते हैं तो इस दैट मीन्स हमारा बिहेवियर, हमारा मेंटली हम कैसे हैं, तो वो आ जाता है। लाइक फूड ऑल्सो हैव दिस कैटेगरी। तो व्हेन वी फास्ट फॉर फर्स्ट 3 days, तो उस समय तमस ज्यादा होता है, एनर्जी तामसिक होती है। सो उस कंडीशन में जितना हम फास्ट कर सकते हैं, जितना हम अवॉइड कर सकते हैं, वेदर इट इज वाटर वेदर इट इज फूड, तो एयर फास्टिंग इज बेस्ट ड्यूरिंग दीज 3 तामसिक पीरियड ऑफ नवरात्रि। पहले 3 दिन एयर फास्टिंग कर सकते हैं, या जो भी पर्सन है उसका जो सबसे स्टार्टिंग, जैसे लाइक यू आर लाइक अ पर्सन हु हैज नेवर केप्ट एयर फास्टिंग, नेवर केप्ट वाटर फास्टिंग, नेवर केप्ट जूस फास्टिंग, तो जो भी चीज वो स्टार्ट करना चाहता है फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट ही कैन डू फॉर दीज फर्स्ट 3 days। नवरात्रि के पहले 3 में वो रख सकता है, पहले 3 दिन। Like let's say I have never kept fast and now I want to start fasting and I want to go with juice fasting. So what I will be doing, I will be keeping juice fasting for the first 3 days. पहले 3 दिन करूंगी मैं, ऐसा मैं संकल्प लूंगी। Then what happens next 3 days राजसिक है, तो then we can increase। तो जूस के बाद में हम जो ब्रेक करेंगे फास्टिंग का प्रोसेस, आई विल बी टेलिंग यू, तो फिर उसको हम चेंज करके वी कैन इंक्रीज द इनटेक। हम फ्रूट्स को ऐड करेंगे और रॉ सैलेड्स को ऐड करेंगे, रॉ वेजिटेबल, रॉ फ्रूट्स, रॉ डाइट को हम फॉलो करेंगे। तो दैट कैन बी डन फॉर द नेक्स्ट 3 days। फिर नेक्स्ट 3 days जो सात्विक डेज हैं, इन दोज डेज यू कैन इंक्रीज हमारा ग्रेन इनटेक इंक्रीज कर सकते हैं। कौन से ग्रेन्स यूज करते हैं जो व्रत में यूज करे जाते हैं, वो वाले जनरली मिलेट्स यूज किए जाते हैं। सिंगाड़े का आटा है, कुट्टू का आटा है, बट उसकी पूड़ियां नहीं बनानी है। वी कैन मेक सिंपल रोटीज यूजिंग दैट। और सब्जी हम ले सकते हैं, जो सब्जी सभी सब्जियों के जूसेस आप ले सकते हैं, सभी सब्जी अलाउड है। बट सम पीपल हैव देयर ओन थिंग कि हम लौकी ही लेते हैं, कद्दू ही लेते हैं, ये नहीं लेते। तो अगर ऐसा कुछ है तो देन यू फॉलो वॉट एवर वेजिटेबल्स यू फील आर अलाउड इन योर कल्चर, आपके उसमें ऐसा है तो। अदरवाइज कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, हम कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। क्या अवॉइड करना है? प्याज, लहसुन ये अवॉइड करना है, मशरूम्स ये अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि दीज आर नॉट सात्विक। हम प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं तो कभी भी ये चीजें मिला के प्रसाद में नहीं देते हैं। तो दीज आर तामसिक फूड। तो ये हमारे अंदर जो है तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाता है। सो तामसिक प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति और राजसिक प्रवृत्ति के नेचर होते हैं अलग अलग। तो सात्विक प्रवृत्ति सबसे अच्छी मानी जाती है बिकॉज इट इज अ बैलेंस, इट ब्रिंग्स बैलेंस। राजसिक मीन्स यू बिकम सो मच योर फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ, अपने ऊपर फोकस रखते हैं, दैट इज सात्विक। मी दैट इज राजसिक, मी पे फंस जाते हैं। तो ऐसा खाना जो राजसिक प्रवृत्ति का होता है, वो खाने से ऐसे हमारे नेचर हो जाता है। it appears in our nature as well. And similarly तामसिक खाना जो होता है, तामसिक खाने में क्या आता है? सारी बासी खाना, all stale food and non-vegetarian, dead food, non-veg, ये सारा तामसिक प्रवृत्ति में आता है। इसको खाते हैं तो लो फील करते हैं, फील करते हैं। एंड सात्विक भोजन ऐसा होता है जिसे खा के हम बैलेंस रहते हैं, ना ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, ना ही बहुत ज्यादा डल हो जाए तामसिक के जैसे, एक बैलेंस बना के रखता है। तो दैट इज सात्विक आहार। वो कौन सा होता है? फ्रेश, एकदम फ्रेश फूड जो होता है, सब्जियां, जो भी प्रकृति ने हमें दिया है, नेचुरल फूड, दैट कम्स अंडर सात्विक। तो yesterday we discussed about, after discussing the benefits, we went for the types of fasting, air fasting, water fasting and juice fasting. Then हमने water fasting में क्या क्या लेते हैं वो डिस्कस किया था, और क्रिया डिस्कस करी थी। तो वाटर फास्टिंग में क्या डिस्कस किया था, आई विल रिवाइज वंस अगेन। जो लोग कल नहीं थे वो ये लिख सकते हैं। तो फास्टिंग में प्री फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेव एग्जांपल कि हमको पैकिंग करना है, अगर हम कहीं घूमने जाएंगे तो सबसे पहले पैकिंग करेंगे, टिकट्स करेंगे और फिर उसकी तैयारी करते हैं। तो उसी तरीके से फास्टिंग की तैयारी करने के लिए हमको एक दिन पहले, कुछ दिनों पहले से ही खाने की क्वांटिटी सिंपल कर देनी चाहिए। इजी डाइजेस्टेबल खाना लें, क्वांटिटी इसकी थोड़ी कम करते जाएं, बहुत हैवी खाना एक दो दिन पहले नहीं लें। सो ऐसा कम खाना लेने से क्या होता है, वी आर
signaling our body that our body is going to fast. तो हम उसको सिग्नल कर रहे हैं. तो फॉर दैट 1 day बिफोर आप अपना ब्रेकफास्ट जो लेते हैं वो सिंपल लें, कम कर दें क्वांटिटी, लंच की क्वांटिटी कम कर दें, और डिनर एकदम लाइट रखें और अर्ली डिनर लें. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर फास्टिंग, द फर्स्ट नाइट बिफोर फास्टिंग, यू हैव टू हैव अर्ली डिनर. अर्ली डिनर लेना है. और फिर कौन सी क्रिया करनी है? नेति एंड वामन, ये दोनों क्रिया हमें करनी है 1 day बिफोर फास्टिंग. नेति क्यों करनी है? नेति से हमारा जो कफ वगैरह बनता है जिन लोगों को व्रत में, वो निकल जाता है. दूसरा, हमारा मेंटल जो स्टेट है वो काम रहता है, क्योंकि फास्ट करते समय डिटॉक्स सिम्टम्स होते हैं. डिटॉक्स सिम्टम्स कैसे होते हैं? वी फील इरिटेटेड, गुस्सा आ जाता है, खाली पेट होते हैं. तो ये सारे जो हमारे अंदर डिटॉक्स चल रहा होता है उसके कारण हमें ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं. तो जब हम नेति करते हैं तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड इज टेकन केयर मोर और लेस. और so neti and vaman should be done 1 day before fasting, for it is compulsory. And vaman क्यों करते हैं? उससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है अगले दिन. हमको, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, तो जब भी वो फास्ट रखते हैं, इसीलिए some people don't keep fast because they have this acid reflux होता है, तो इसी कारण people don't keep fast. But vaman takes care of this. Then on the next day, the day of the fast, what routine we should follow? We should do all our yoga sadhana जो हम करते हैं, जो करते आ रहे हैं, वो करना है. अगर आप नहीं करते हैं तो you can join my yoga session. सुबह morning 7 AM to 8 AM होता है. और योगा करना is most important. वो करना, आप योगा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है. अगर आप योगा नहीं करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो फॉर सम अदर वर्कआउट, यू कैन डू दैट. सुबह करना है हमको वो चीज. उससे क्या होगा? थोड़ा हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा. या वी गेट एनर्जी व्हाइल डूइंग योगा. मॉर्निंग वॉक पे जाना है. मॉर्निंग वॉक अगर हम जाएंगे मॉर्निंग के टाइम पे, तो हमें सनलाइट मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी. तो दीज 2 थिंग्स विल बी टेकन केयर. फिर हमने अपना ये साधना कर लिया. एंड कौन सी क्रिया करनी है? ऑन द डे ऑफ फास्टिंग वी हैव टू डू नेति. नेति इज ऑप्शनल. इफ यू डू इट, इट इज वेरी गुड. उसके बाद वामन नहीं करना है. वामन हमको केवल एक दिन पहले करना है. ऑन द डे ऑफ फास्टिंग वी विल बी डूइंग नेति एंड बस्ती. बस्ती क्या होता है? एनिमा. हमने कल इसके बारे में बात करी थी. तो एनिमा कैसे करते हैं, क्या करते हैं? एनिमा का एक किट आता है. वो किट आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा. उस किट में क्या होता है? देयर इज बकेट, काइंड ऑफ स्मॉल बकेट होता है. उसमें एक पाइप होता है और नोजल होता है. तो वो आप, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट कैसे करना है. आई विल शेयर इन द ग्रुप. मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी. इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस. टेक्स जस्ट 5 to 10 minutes. अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जस्ट 15 minutes में आपका हो जाएगा. 15 minutes का काम है ये. और इट हैज टू बी डन इन द मॉर्निंग टाइम. मॉर्निंग में हम करते हैं इसको. तो कब करना है? जब हमारा रेगुलर बावल मूवमेंट हो जाता है, एक बार फ्रेश हो जाते हैं जब सुबह, उसके बाद इसको करना है. एंड देन यू कैन, इफ यू आर फेसिंग दीज सिम्टम्स मोर, अगर ये सिम्टम्स आप ज्यादा फील कर रहे हैं, डिटॉक्स सिम्टम्स, यू आर नॉट एबल टू, आपको लग रहा है कि अभी मुझे फास्ट तोड़ना पड़ेगा, नहीं हो पा रहा है मुझसे, उस समय आप ये ले लीजिए दोबारा. यू कैन टेक अगेन एनेमा. एनेमा रिलीव्स क्विकली. अभी आई टोल्ड यू कि आई विल बी डिस्कसिंग टुडे कि एनेमा से का और क्या, मतलब व्हाई वी डू एनेमा, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्यों करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है, हमारी इंटेस्टाइन्स आर कनेक्टेड विद ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड है, थ्रू नर्व्स कनेक्ट रहती है. और वट एवर वेस्ट प्रोडक्ट इज देयर फ्रॉम एवरीवेयर, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है इंटेस्टाइन तक पहुंचता है. यस, इंटेस्टाइन में इकट्ठा होता है. एंड देन दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी. तो जब क्या होता है, व्हेन वी फास्ट, वी स्टॉप टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड आवर बॉडी यूज इंटरनल एनर्जी, अंदर की एनर्जी यूज करके अपने आप को सस्टेन करती है. दैट व्हाट आई टोल्ड यस्टरडे अबाउट कीटोसिस. कीटोसिस स्टार्ट होता है. तो उस कंडीशन में जब हमारी बॉडी अंदर
को अंदर ही जो हमारी फैट सेल्स हैं, जो भी डेब्रीज हैं, जो भी कैंसर सेल्स अगर हो सकती हैं, तो जो भी मेडिकल इलनेस कॉजिंग सेल्स हैं, उनको किल करके, उनको यूज करके सस्टेन कर दिया बॉडी. सो दैट इज व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट. तो ये जो सारा डिटॉक्स होकर हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन्स में, तो इंटेस्टाइन में जाता है और वो वहां से फिर हमारे मेंटली, क्योंकि नर्व से कनेक्टेड होता है, ये सारी चीज हमें बॉदर करती है. हमको हेडेक हो सकता है, वी मे फील इरिटेटेड, वी मे फील एंग्री. तो जैसे ही हम एनिमा ले लेते हैं तो ये सारा जो हमारा कोलोन क्लीन हो जाता है और इंस्टेंट में हमको एकदम एनर्जी लेवल अप हो जाता है. वी स्टार्ट फीलिंग वेरी हैप्पी, रिलैक्स्ड. So that's why enema is very important, and that's why it is said in Ayurveda that without enema, fasting is not possible. This is not fasting. And for newcomers, it is very, very important. The one who has never kept fast earlier, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो enema करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप you will give up on fasting. फिर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे. Some people, like if I said yesterday, if a person is a kapha person, तो उसके नेचर के साथ inclined है fasting, he can do. तो अगर आप काफा प्रवृत्ति के हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, like others. पित्ता एंड वाता के लिए एनिमा इज मस्ट, तो तभी वो उसको सस्टेन कर पाएंगे फास्टिंग को. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनिमा? एनिमा में हमको एक ये बात ध्यान रखनी है इसमें कि हमें कितना पानी लेना होगा. हमें we don't have to take full 1 liter of water which is usually taken, and we don't have to add anything in the water. We have to take normal warm water. कितना amount? 300 to 400 ml. That's it. इससे ज्यादा पानी नहीं लेना. 300 से 400 ml पानी बस. And it will very quickly, it will go inside our body, and हम जो nozzle होता है उसको anus में लगाते हैं, and we lie down in one side. एक side में हम करवट लेके lie down करते हैं, easily उसको लगा लेते हैं. In the washroom you can do it, और जो भी washroom के पास आपका कमरा है, जिस उस रूम में भी आप कर सकते हो. तो उसमें पानी जिसमें भरते हैं उसको थोड़ा हाइट पे टांगना होता है. We hang that in some height, and then we lie down and insert the nozzle in the anus region, lying down at one side. उसके बाद क्या करते हैं, जो nozzle को open करेंगे तो पानी अंदर जाएगा, और quickly it will go, and then try to hold the water as long as you can hold. जितनी देर hold कर सकते हैं पानी को उतनी देर hold करना है. If you are not able to hold, you directly want to go to the toilet, that is totally fine, वो भी कर सकते हैं. तो और कभी कभी होल्ड करने के बाद भी हाथ आता नहीं है, यू मे नॉट फील लाइक गोइंग टू वॉशरूम, सो दैट इज ऑल्सो फाइन. थोड़ी देर बाद होगा, बट इट विल हैपन. तो वो बॉबल मूवमेंट तो होगा ही, इट मे टेक सम टाइम. सो जस्ट यू हैव टू डू इट एवरी डे ड्यूरिंग फास्टिंग. जितने दिन फास्ट करेंगे रोज करना है, एक बार करना है. आप सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद कर सकते हैं, अदरवाइज आप सोने के पहले भी कर सकते हैं. एट नाइट before sleeping you can do it. But कब नहीं करना है, जब like if you are doing juice fasting, तो जैसे जूस ले लिया उसके तुरंत बाद नहीं करना है. So just make sure कि आपने जैसे ही कुछ लिया उसके तुरंत बाद नहीं करें, थोड़ा half an hour gap रख लेंगे, then you can do it. So जब भी symptoms, detox symptoms you find that they are increasing, then just take enema. This will help. इसके कोई side effect नहीं है. This is non-violent enema. कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं जो what we are doing. People who do it like they don't go for जो सुबह रेगुलर बाउल मूवमेंट होता है वो नहीं करते हैं, and they just keep taking enemas. That is not a healthy habit. What we are doing is होने के बाद, फ्रेश होने के बाद we are cleaning again हमारा कॉलम. और क्या होगा, धीरे धीरे you will notice कि आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, but when you are taking enema इतना वेस्ट कहाँ से निकल रहा है. So this is very interesting. So this will make you think about it. मैं कुछ खा नहीं रही हूँ पर ये इतना सारा कहाँ से निकल रहा है. So every day you will notice that all the detox is happening, and you will feel blessed कि at least I am able to experience this, and I will be getting all the benefits out of it. तो इसीलिए make sure you get your enema bought. किसी भी मेडिकल स्टोर पे easily मिल जाता है, Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं. तो you have to get it. Or then what we have to do enema
on the day of fasting. Neti is optional, you can do it. And वामन कब, अगर आपको एक दिन पहले वामन करने के बाद भी एसिडिटी लग रही है, you are still feeling acidity, तभी उसी कंडीशन में आपको वामन करना है दोबारा. अदरवाइज ऐसा होता नहीं है. एक बार जो एक दिन पहले कर लेते हैं तो हमें वामन की जरूरत नहीं पड़ती. So this what you have to do. And then water fasting में सबसे पहले हमने क्या ले लिया था? Honey. Swati, Yeah. question related to this thing. Can I ask now? Yes, ask. So will you be sharing the video of this Basti on our group, in our group? Yes, I will be sharing step by step पूरा process में share करूँगी. इसीलिए I'm not telling it so much now. But if you have any other question, please ask. And the second one is if in case if the motion doesn't come in the morning itself, and you are asking us to do after it, so how long should we wait for it? So shall I? What do I need to do that? No, that what I told is about like regular people who regularly do basti without going to toilet every day. But in fasting, but in fasting, if the motion will not come from second day, automatically it will not come. It is possible. Yeah, if you are on water fasting, so you are not eating anything, so there is a possibility motion will not come. So that's okay. You have to do enema. तब हमको enema करना ही है. And in case day one also, if motion doesn't come, then also we can do, right? Yes, then also you can do. Fasting में this will happen कि हम क्योंकि खा नहीं रहे हैं तो motion नहीं होगा. But if you in that case you have to do. हमें करना ही है. Every day करना है. And if the detox symptoms are more, you can do twice a day. ठीक है? Then हाँ Kumar. While the pre-preparation, we need to do Vaman a day before, right? Yes. Day before, as in the night? No. Day before, वही morning में. All the kriyas are done early morning. जैसे हम रोज करते हैं, every weekend which we do, तो हम morning में ही करते हैं ना. Okay, but then we eat light food during the pre. Yeah, we eat light food. हम light खाना लेंगे एक दिन पहले. This is important कि हम एक दिन पहले अपनी body को signal कर देंगे by taking light food. Yes. So in the water fasting we can take for the freshers जिन्होंने कभी पहले water fasting नहीं करी है, it is good to take honey lemon warm water. तो कितना? I already told 1 glass water में half lemon squeeze करना है, 1 spoon honey mix करना है, and then we can have that. और चाहे तो 2 ग्लास ले सकते हैं if you are not filled with one. एक ग्लास में पेट नहीं भर रहा है, या if you feel कि और लेना है तो you can have it. Sip by sip लेना है, कूट करके पीना है, कट करके जल्दी नहीं पीना है. So that is your meal. ये समझ के कि that is your meal, तो उसको पूरा आराम से बैठ के respect mode में कि understanding the importance of food, थोड़ा awareness हमें बनानी है. जो भी चीजें हम करेंगे fasting के दिन awareness के साथ उसे करना है. तो that will make your experience more better. फिर हमारा इवनिंग में हमने फिर से जब भी हमको दोबारा भूख लगता है, मे बी 4 to 5 PM के टाइम पे, और इन द डिनर टाइम 8 PM और whichever time, तो अगेन यू कैन हैव हनी लेमन वाटर. और इसके अलावा कभी भी पानी ले सकते हैं, बट ट्वाइस ओनली आई वुड सजेस्ट यू टू हैव हनी लेमन वाटर. थ्राइस ना करें उसको. ठीक है? So this is clear. Everyone is clear with the water fasting. Yeah. And evening में if you can do meditation, then it is more better. आप कोई भी guided meditation लगा के कर सकते हैं. गुरुदेव के बहुत सारे guided meditation available हैं YouTube पे. You can use that. Or if you want to, if you know already हम जो करते हैं class में पंचकोशा meditation, that you can do it on your own. वो आप अपने आप कर सकते हैं. And बाकी लोग जिनको भी help चाहिए है, कौन सा meditation है पहले नहीं किया है, तो you can मैं ping कर, okay, I will share it in the group link. I will share, तो so that you can do that. So this will help. हम जो भी है कुछ अपनी books पढ़ सकते हैं. Try not to involve in the TV, in the mobile. Be with yourself on this fasting days. जितना हो सके अपना जो ना relax करने वाला काम करना. Not because already energy हमारी heal कर रही है, अंदर है सारा awareness. तो अगर हम ये करेंगे mobile TV, तो that will not be healthy. वो हमें उतना मतलब it will not support इतना.
your eyes may get pain, तो आंखों को भी you relax as much as you can. Then evening में meditation कर लिया, that is important. आप evening में meditation करें. And those who have habit of meditating before having your meals, before having lunch and dinner, तो वो आप जब आप lemon water लेंगे तो उसके पहले अपना कर सकते हैं 10-15 minutes meditation and then you have your water. And the next day, how to break, कैसे break करना है. तो ये अगर आप 3 days water fasting कर रहे हैं तो continue these 3 days of water fasting. But for the people who are doing it for the first time, so just keep observing yourself, how you're feeling, how is your energy level, and keep sharing in the group. Group में सारा share करते रहेंगे कैसा क्या लग रहा है, so that I could guide you, because I will be wanting you to continue for the first 3 days as water fasting only. तो पहले 3 दिन water fasting ही करें. But अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, नहीं हो रहा है, तो हम उसको switch करेंगे, वाटर से जूस पे आएंगे. तो अब जूस फास्टिंग में क्या करना है, जस्ट पहला जो 1 दिन पहले का जो रूटीन है वो सेम रहेगा. खाना कम करना है, लंच डिनर अर्ली करना है, और डिनर जितना सिंपल हो सके. मान लो अगर आप लेट डिनर ले रहे हो तो यू कैन हैव बॉइल्ड वेजिटेबल्स ओनली, नो ग्रेन्स. फिर जूस फास्टिंग में जो हमारा सबसे पहला जूस होगा वो एट द टाइम ऑफ योर ब्रेकफास्ट, जब भी आप होता है, कोई भी ग्रीन जूस ले सकते हैं. Again, there are 3 types of juice fasting. The one which I am sharing here is a normal one, but 3 types of juice fasting में कौन सा होता है? First is coconut water. You can only take coconut water, पूरे दिन भर coconut water पे लेकर you can fast. Then second type of juice fasting is this white winter melon. Have you seen white pumpkin, सफेद पेठा, जो जिसका पेठा वो पेठा आगरे का पेठा बनता है, स्वीट. So Ashgod. Yeah, ashgod. Yeah. So that second type of fasting में ashgod लेते हैं. तो ashgod का जूस लेते हैं. वो कैसे बनाते हैं उसको, how to जूस बनाने का मेथड, 2-3 methods are there. जो भी convenient आपके लिए आप वो करें. मिक्सी में जो नॉर्मली बनाते हैं उसमें अपना उसको थोड़ा छील लें, ऊपर का निकाल के छिलका, और पीसेस में चॉप कर लें, और मिक्सर में डाल के थोड़ा वाटर ऐड करें, उसको पूरा मिक्स कर लें, पूरा ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के बाद उसको छानना पड़ेगा. तो कोई भी एक कॉटन मुस्लिन क्लॉथ लेकर उसमें पूरा उसको दबा के छान लें, और जो छानने के बाद जो पानी पानी होगा एकदम, उसी को हमें लेना है, सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होंगे उसमें. तो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर ऑल योर जूसेस को छान के ही लेना है. व्हाई? क्योंकि वी आर फास्टिंग, सो वी डोंट वांट टू गिव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन विल गेट एक्टिवेटेड इफ एनी सॉलिड थिंग विल एंटर. तो हमें कोशिश करना है कि हम बिल्कुल प्लेन जूस ही लें. जो जूस होता है वो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाके उसकी क्लीनिंग में हेल्प करेगा. तो जूस विल एक्ट एज अ फ्रेंड इन डिटॉक्स प्रोसेस. जो भी हमारी जो एनर्जी डिटॉक्स कर रही है उसको सपोर्ट करेगा. तो वाइट पेठे का रस, आप जो जूस है वो आप लेंगे अगर इफ यू आर फास्टिंग विद दिस ashgod जूस फास्ट. देन द थर्ड टाइप ऑफ फास्ट इज जिसमें आप किसी भी सब्जी का जूस निकाल सकते हैं. मोस्टली हम किस सब्जियों का जूस निकालते हैं? जो वाटर रिच फ्रूट्स, वाटर रिच जो लीव्स होते हैं, सब्जियां होती, जैसे लौकी है, पम्पकिन है, कद्दू है, एंड दिस ashgod है. ऑल द वेजिटेबल्स, इनके कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं. कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो कैसे होंगे? आप उसमें नमक नहीं डाल सकते, सॉल्ट नहीं डाल सकते, नो स्वीटनर, कोई स्वीटनर नहीं डाल सकते. टेस्ट के लिए इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड सम पुदीना, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, जिंजर, एंड यू कैन ऐड what I wanted to say, and lemon you can add, but you can't add salt and you can't add sugar. ऑलरेडी जो फ्रूट्स, जो ये सब्जियां होती है उसमें उनका नेचुरल सॉल्ट रहता है, नेचुरल स्वीटनेस रहता है. तो ये सारा जो होता है थर्ड कैटेगरी ऑफ फास्ट जो है जूस का, उसमें आप किसी भी सब्जियों का और किसी भी डिफरेंट वेजिटेबल्स को आप ले सकते हैं. तो फर्स्ट जूस होगा, इट इज प्रेफर टू हैव अ ग्रीन जूस. ग्रीन जूस मतलब जिसमें हरी पत्तियां हों. हरी पत्तियां कौन सी? इट कैन बी पालक,
It can be whichever seasonal vegetable leaves are available in your region. तो आपके रीजन में जो भी लीव्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं. यू कैन ऐड करी पत्ता का को ऐड कर सकते हैं. तो दिस कैन बी कंबाइंड विद अदर vegetables like morning juice में, morning green juice में you can have cucumber, tomato and these leaves. तो plain वो leaves का लेंगे तो you may not like the taste. अपने हिसाब से you can make the combination. Only thing is have leaves in the morning. तो वो detox में और हमें help करता है. Same process है, grind कर लो और वो कपड़े में पूरा छान लो और जो पानी पानी है that we have to drink. कितना लेना है, कैसे पीना है, सेम प्रोसेस as I told in water fasting. घूट करके धीरे धीरे पीना है, हमको चबाना है. Imagine that this is our meal, we have to finish it in that 15-20 minutes of time that we take usually for in finishing the meal. तो उतनी देर तक धीरे धीरे पानी को पूरा स्विश करते करते जूस को and then we have to have it. So this is very important. अगर आप एकदम जल्दी जल्दी पी जाएंगे तो you will not feel contented. आपको भूख लगती रहेगी. आपको बैठकर समय लेके वो जूस को फिनिश करना है. So this is important. So I'll just note down the timings. I will share it in the group as well. तो first juice जो है just for your information so that you can write it down, 9 AM के around you can take your first juice. So this time is not important. The most important thing is if you are hungry, so you can have your first juice. Just for writing basis, I am telling you कि 9 AM एक juice हो जाएगा आपका. That is preferred to have it green juice. Yeah, have green leaves in it. You can add curry patta, you can add coriander, whatever seasonal vegetables available, leafy vegetables. Then second juice you can have at 11:30 around. Then this juice can be any juice. It can be carrot juice, beetroot juice, combination of carrot, beetroot, combination of tomato, beetroot, whatever taste you like, usko combination में आप बना के ले सकते हो. Then the third juice you can have at 2 PM. 2 बजे आप ले सकते हैं. Again, any combination you can have. Even you can have coconut water, ashcot juice. ये सब आप allowed है. It's just you don't have to take any packaged juice. कोई भी जो bottle से sugary added juice होते हैं वो नहीं लेने. Fresh घर पे बना के लेना है. After 2 PM, next juice is हाँ कोमल बोलो. You said the previous juice timing should be 2 PM, but for me the yoga classes normally start at 2:30 PM. So I should probably skip this one, right? If I'm you have to manage kuch karke, you have to manage. It is not necessary time. That is what I'm saying. Time is not important. Important is if you are hungry at that time. Like your lunch time is after yoga class. If you are taking lunch after yoga class, then you take juice after yoga class. Yeah. This is only for just getting an idea that these many times you can have. Okay. So after 2 PM at 5:30 PM you can have another juice. अब फ्रूट जूस ले सकते हैं क्या? फ्रूट जूस में आप ले सकते हैं, बट विच ऑरेंज मौसमी जूस ये ले सकते हैं, बट फर्स्ट जूस नहीं लेना है. जो ग्रीन जूस का टाइम है सुबह वाला, उस समय फ्रूट जूस नहीं लेना है. मौसमी एंड ऑरेंज जूस यू कैन टेक. उसको आप यूजुअली इफ यू विल टेक इट बाय 2 PM और 5:30 PM, दैट इज मोर बेटर. बट सुबह पहला जूस नहीं लेना है. क्यों? क्योंकि फ्रूट्स हैव मोर शुगर कंटेंट इन इट. तो फर्स्ट में हम शुगर जूस ले लेंगे तो इट इज नॉट हेल्दी. तो दैट्स व्हाई यू कैन हैव इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे. एंड जूस ओनली मौसमी एंड दिस थिंग ऑरेंज इज बेटर, बिकॉज वो नॉर्मली हम छान के लेते हैं. और बाकी जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आर एक्चुअली ऑलवेज टेकन एज अ होल. तो उसको छान देंगे तो उसमें बस शुगर ही रह जाता है. बट मौसमी एंड ऑरेंज एनीवे अगर भी जूस उसको हम वो छान के जूस लेते हैं तो दैट कैन बी टेकन. यस. देन ये इतने ही 4 जूसेस आर ओनली सफिशिएंट. बट अगर किसी को बहुत ज्यादा ऐसा मन है कि एक और जूस लगेगा तो 7 PM अराउंड अगेन यू कैन हैव अनदर जूस.
4 juices are sufficient. और वो सारी जो प्रैक्टिसेस है वो सेम रहेगी. सुबह जो साधना है वो करना है. मेडिटेशन इफ यू कैन डू ट्वाइस लंच और डिनर के समय पे. और सनबेदिंग एवरीडे लेना है. फ्रेश एयर एवरीडे लेना है मॉर्निंग में. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड डोंट टेक वार्म वाटर बाथ. पानी को गर्म करके नहीं नहाएं. सी इफ यू कैन टेक नॉर्मल वाटर बाथ. For कोमल you just रूम टेम्परेचर पे पानी करके, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा गर्म पानी पे नहीं नहाना है. या ट्राई टू टेक बाथ एट नॉर्मल वाटर. फास्टिंग के समय हमको नॉर्मल पानी से ही नहाना चाहिए. या फ्रिज का पानी भी ऐड नहीं करना है, नॉर्मल वाटर बात करना है. अब किसी को जिसको बहुत हेडेक होता है, नॉर्मली खाना नहीं खाते हैं, जैसे पित्त, जो लोग के पित्त बड़ा रहता है उनको, या पित्त प्रवृत्ति होती है, वो ज्यादा भूखे रहते हैं तो हेड में दर्द होने लगता है. तो इफ यू गेट हेडेक, व्हाट यू कैन डू इट आफ्टर हैविंग एनेमा आल्सो, हेडेक रह रहा है तो यू कैन टेक 1 कॉटन पट्टी और यू कैन टेक अ हैंकरचीफ और अ टॉवल. उसको गीला करके यहाँ पे लगा सकते हैं थोड़ी देर ठंडा पानी में सोक करके. इफ यू पुट इट ऑन योर हेड, उससे हमारा हेडेक ठीक हो जाता है. जिनको ज्यादा, जैसे इफ समबडी इज हैविंग माइग्रेन एंड दे वांट टू फास्ट, तो माइग्रेन वालों के लिए फास्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट दे विल गेट पेन. तो वो ठंडे पानी की पट्टी से ठीक होता है, उनको आराम मिलता है. यस. अब कौन फास्ट नहीं रख सकता है? प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे एयर फास्टिंग एंड वाटर फास्टिंग इज नॉट अलाउड, बट यस दे कैन कीप जूस फास्ट. जूस फास्ट रख सकते हैं और हेल्दी होता है. और उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने भी जूस ले सकते हैं. एंड दे कैन हैव एज में कोई भी फ्रूट्स और कोई भी वेजिटेबल्स जो भी उनके पसंद की हैं वो ले सकते हैं जूस फास्टिंग में, अगर इफ दे वांटेड टू डू फास्ट. बट एयर फास्टिंग और वाटर फास्टिंग नहीं करना है उनको. यस. और अगर किसी को कोई मेडिकल आइलमेंट है एंड ही और शी इज ऑन मेडिकेशन, दवाइयों पे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि यू आर गोइंग टू टेक दिस फास्ट. ही मे बी सरप्राइज्ड एंड ही मे से नो, बट व्हाट हैपेंस इज इफ यू मेक देम अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, यू विल बी फॉलोइंग ऑल दीज guidelines and you are under under monitoring, matlab there is somebody to guide you, you are not doing it on your own, so he may understand. But what is most important is like I will just give an example. जैसे डायबिटिक पर्सन है एंड डायबिटिक पर्सन इज ऑन मेडिकेशन, कुछ उनका गोली रहता है इंसुलिन वगैरह का, और अगर वो फास्ट रखते हैं, तो जब हम फास्ट रखते हैं तो ऑलरेडी शुगर लेवल कम हो जाता है बॉडी का, और जो वो मेडिसिन लेते हैं डायबिटीज वाले, उसको लेवल को कम करने के लिए लेते हैं. तो अगर आप मेडिसिन ले लेंगे और फास्ट भी रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो दैट इज नॉट हेल्दी. तो उसमें क्या करते हैं, आपका डोज आधा हो जाता है. जो भी डायबिटिक वाली दवाइयाँ ले रहे हैं उसका डोज आधा हो जाएगा. तो सिमिलरली बिकॉज आवर बॉडी इज ऑलरेडी क्लीनिंग, ऑलरेडी हीलिंग, तो इसीलिए जो भी आपका डोसेज है वो कम हो जाता है. तो दैट इज ऑलवेज it is always necessary to consult with your doctor about your medication. तो मेडिकेशन को आपको बता देगा कि अब ये नहीं लेना है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं. Yes, so that is why this is important for people who are on medication. So it's better for them to take juice fast ही करें, air fast और water fast ना करें for people who are under medication, and consult for the dosage with the doctor कि हमको उसे कम करना है नहीं. And it is very beneficial. जो I will be sharing one documentary, fasting का documentary मैं share करूँगी. In that all the research and all the details, एक fact आपको पता चलेंगे उसके बारे, fasting के benefits के बारे में. तो you will see that how critical condition a person was, and once he fasted, what kind of benefits he experienced. And वो फास्ट ऐसे भी नहीं किया था 9 days फास्ट. पीपल हैव फास्टेड फॉर 1 month, 2 month, 3 month डायरेक्टली कंटिन्यूसली फॉर जूस फास्टिंग किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग किया. तो these all information you will get in that documentary. It's very interesting. तो जब आप नवरात्रि फास्ट करेंगे उसके एक दिन पहले या फिर ड्यूरिंग फास्टिंग, you can watch that video and get more motivated and inspired. Yes. तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें आप पूरा शेयर करें अपना एक्सपीरियंस.
कि अभी ये हो गया है, अभी ये किया है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग अभी किसी से लड़ाई हो गई है, जो भी है पूरा एक्सपीरियंस आप शेयर करें, बिकॉज देन इट विल बी यू नो दिस सपोर्ट ग्रुप विल बी एबल टू, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू गाइड ईच अदर मोर वेल. अगर किसी का कोई ट्रिक करके हेल्प मिल गया है तो दैट पर्सन कैन टेल अदर्स ऑल्सो, क्योंकि many yoga teachers are there and we know so many techniques to take care of at that condition. तो आप अपने experiences ग्रुप में जरूर शेयर करें जो भी आप लेने वाले हैं. या तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू टेक संकल्पा कि मैं कौन सा फास्ट करने वाली हूँ और कितने दिन का करूंगी. ये नहीं सोचना है, द फियर, मोस्टली द फियर विल टेक ओवर, और फियर के कारण हम सोचेंगे कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं. तो पहले ये नहीं सोचे मुझसे होगा नहीं, पहले संकल्प लें कि इतने दिन का मुझे फास्ट करना है और मैं करूंगी. यस माइंड से चलना है. या सो फर्स्ट 3 days if you can keep water fasting, that is best. Then next 3 days you keep juice fasting. Then last 3 days, but जिनको अगर एयर फास्टिंग का भी है तो दैट आई हैव टू टॉक टू देम पर्सनली, अलग से मैं बात करूंगी. अगर कोई वाटर फास्टिंग करना चाहता है, निर्जला फास्ट रखना चाहता है, तो दैट इंस्ट्रक्शंस आई विल बी गिविंग पर्सनली. ठीक है, तो ये 3 days हो गए हमारे जूस फास्ट. अब क्या, नाउ यू विल बी स्लोली शिफ्टिंग टू रॉ डाइट. रॉ डाइट में क्या करना है, कैसे फास्ट को ब्रेक करेंगे हम. तो फास्ट को ब्रेक करने के लिए अगले दिन हम वही चीजें करेंगे, अपनी साधना किया, अपना सन बेथिंग किया, अपना फ्रेश एयर लिया. आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग आवर फर्स्ट जूस, जो हम नॉर्मली लेते हैं फर्स्ट जूस ही लेंगे 9 o'clock से. फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज जो हम फास्ट ब्रेक करने के लिए विल ब्रेक थ्रू फ्रूट. कोई एक फल खा के हम फास्ट खोलेंगे. कौन सा फल खाना है, कोई भी स्वीट फ्रूट लेंगे तो इट इज गुड. एक एनी स्वीट फ्रूट, it can be apple, it can be papaya, it can be watermelon, it can be this what we call kharbuja. So these melon kind of sweet fruits you can take morning में. तो कैसे खाना है, ऐसे खुश होके भड़बड़ा के एकदम नहीं खाने लगना है, धीरे धीरे च्यू करते हुए आराम से खाना है. तो वो इम्पोर्टेंट है. थोड़ा सा जब भी ये फील हो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, टेक फ्यू ब्रेथ्स. ब्रेथ लेके नॉर्मल रिलैक्स होके आराम से बैठकर थोड़ा प्रेफुल होके कि इतने दिन मैंने ये करा फास्ट, और फिर उसको हम ऐसे ओपन करेंगे. फ्रूट खाएंगे सबसे पहले, और सिंगल फ्रूट हो तो बहुत अच्छा है, एक ही फ्रूट हो, मिक्स करके बहुत सारे फ्रूट ना खाएं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस, जब हमने इतने समय तक फास्ट किया तो जो हमारी जठराग्नि थी वो पेट से डाइजेस्टिव फायर दैट बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, और वो बाकी सारी काम कर रही होती है, क्लीनिंग कर रही है, डिटॉक्स कर रही है, फैट को बाहर निकाल रही है, कैंसर सेल को किल कर रही है, सारा काम कर रही है वो. अब हम जब खाना चालू करेंगे तो धीरे धीरे इसको हमें लेके जाना है बॉडी के लिए. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ब्रेकिंग द फास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको उसको एकदम से आप सब्जी रोटी दाल चावल नहीं देंगे. तो फर्स्ट विल हैव ओनली फ्रूट्स. हाँ, फ्रूट्स लेंगे सादे सिंपल, एक कोई फ्रूट ले लिया. देन आफ्टर दैट यू कैन हैव सैलेड्स. इसके बाद आप सैलेड ले सकते हो. सैलेड कैसे, खीरा टमाटर का सैलेड बना लिया सिंपल, कुछ प्याज नहीं डालना है किसी भी चीज में, प्याज और लहसुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, नमक नहीं लेना है. You can add lemon if you want, you can add lemon for taste, you can add coriander, you can grate some ginger. Salad आप अपने हिसाब से बना सकते हैं. तो वो, and you can add some coconut also. Coconut जो होता है ना, this पूजा वाला नारियल जिसमें white cream होता है अंदर, उसको आप ग्रेट करके डाल सकते हैं. So that can be added. So that will be your next thing. Salad ले सकते हैं आप. फिर उसके बाद शाम को इवनिंग टाइम में, आफ्टरनून में अगर फिर से दिस 4 to 5 के टाइम पे अगर दोबारा से भूख लग रहा है, अगर लग रहा है, देन यू कैन हैव अनदर जूस. कोई भी जूस ले सकते हैं जो हम ले रहे थे इतने समय से. एंड देन इन द डिनर टाइम यू कैन हैव थोड़ा और उसमें ऐड कर सकते हैं, एक ग्रेन ले सकते हैं, कोई भी एक ग्रेन जो फास्ट में अलाउड है, लाइक मिलेट्स, preferably millets, only millets.
ठीक है। और अगर आप इसको और कंटिन्यू, जो लोग दे आर ओके विद द सैलेड्स, दे आर ओके with only fruits and vegetables, so they can have only boiled vegetables. आप केवल boiled vegetables शाम को ले सकते हैं डिनर में अपने। तो boiled vegetables कैसे लेना है, सभी सब्जियां जो भी सीजनल की सब्जियां हैं आपके पास अवेलेबल हैं, उनको चॉप करके आप या तो स्टीम कर लेंगे या तो बॉईल कर लेंगे, और फिर उनको बॉईल करने के बाद अगर आपके पास देसी घी है तो उसमें हल्का सा थोड़ा राई डाल के, जीरा डाल के, तड़का लगा के उसमें डाल के उसको ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ग्राइंड देम ऑल एंड मेक इट अ सूप, सूप के जैसे उसमें घी डाल के ले सकते हैं आप। अगर वात पित्त है तो घी डालना जरूरी है, और अगर घी देसी काऊ का घी होना चाहिए, और अगर घी नहीं है तो आप क्या डाल सकते हैं, कोकोनट, कोकोनट की जो गरी होती है वो डाल सकते हैं। सो दिस फैट इज इम्पॉर्टेंट, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ग्रेन लेना है तो ग्रेन में फिर आप उसका जैसे जो भी मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स का उपमा बना के ले सकते हैं। कैन ऐड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। ये याद रखना है कि हमारे बॉडी कैसा है, 70% वाटर होता है, 30% को छोड़ के 70% वाटर होता है। तो जो हमारा खाना है उसमें ये ध्यान रखें कि 70% हमारी वेजिटेबल्स हो और 30% ये ग्रेन हो। तो उससे क्या, हमारा वाटर इनटेक होना चाहिए, वाटर फाइबर्स ज्यादा जाने चाहिए हमारी बॉडी में, तो दैट विल हेल्प टू डाइजेस्ट दैट उपमा जो हमने थोड़ा सा लिया है, वो डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करेगा। यस, तो इफ यू कैन टेक बॉइल्ड वेजिटेबल्स वो बहुत अच्छा है, और बॉइल्ड वेजिटेबल्स नहीं ले सकते हैं तो यू कैन हैव 1 ग्रेन। और फिर ये जो लास्ट डे है इसको आप 3 दिन तक फॉलो करें, लास्ट 3 days। तो this is how you can keep your 9 days of fast नवरात्रि में। तो क्या होता है, क्यों हम नवरात्रि में 9 days की फास्टिंग करते हैं, ऐसा क्यों सेट किया गया है? इफ यू विल ऑब्जर्व दीज नवरात्रि कम्स ट्वाइस अ ईयर। वैसे 4 नवरात्रिज होती हैं, बट दोस रिमेनिंग 2 आर गुप्त नवरात्रिज। जो मेन ये 2 नवरात्रिज होती हैं, दे फॉल एट द टाइम व्हेन द सीजन इज चेंजिंग। तो सीजन चेंज होता है तो उस समय क्या होता है, जनरली व्हेन द सीजन इज चेंजिंग पीपल फॉल सिक, इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, बीमार होते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पुराने ऋषियों ने इतना इंटेलिजेंस लगा के वो नवरात्रि के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में हम लोगों को फास्ट दे दिया, ताकि हम लोग फास्टिंग रख के 9 days में जो प्यूरिफिकेशन हो जाता है बॉडी का, दैट बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी एंड दैट मेक्स अस टू सस्टेन दीज 6 months विदाउट एनी फिजिकल इश्यूज। तो ये हमें बीमारियों से दूर रखने के लिए ये ऐसी परंपरा बनाई गई है। बट बिकॉज ऑफ सेलिब्रेशन मोड और उसमें फास्टिंग की जगह वो ईटिंग चालू हो जाती है। सो अगर हम ये फॉलो करेंगे 9 days फास्ट में और इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो दिस विल अश्योर कि हमारा जो नेक्स्ट 6 months का टाइम है वो बिल्कुल अच्छे से निकले, बिना ये सारी प्रॉब्लम्स के। तो दैट्स व्हाई दिस फास्टिंग इज देयर। तो आपको डिसाइड करना है ना, यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ फास्ट यू आर गोइंग टू टेक, हाउ मेनी डेज ऑफ फास्टिंग यू विल बी डूइंग, एंड उसके लिए कमिटमेंट देना है अपना। और अपने घर वालों को भी ये सब बता देना है ऑलरेडी, बिकॉज दे विल ऑल्सो बी सीइंग यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स, एंड वो देखकर ज्यादा परेशान होते हैं। तो उनको मेंटली आपको पहले कन्वे करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एयर फास्ट कर रहे हैं या वाटर फास्ट कर रहे हैं और बीच में आपको खाना दे दिया कि खाना ही पड़ेगा, एंड देन यू विल ईट दैट, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए आप बैठ आराम से अपने घर पे यू इन्फॉर्म एवरीवन, और बैठ के उनको बताएं कि ये करने वाले हैं, एक ग्रुप है हमारा, सब लोग मिलके करेंगे, एक दूसरे का देखेंगे, ध्यान रखेंगे, एंड लाइक दिस वी विल बी डूइंग इट, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और कोई ऐसा इम्पोज नहीं है कि ये सारा करना ही है, इट इज जस्ट यू हैव टू डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट देना है, and as long as you can do it, try to have this mindset only कि you will be able to follow it. अब इसका alternative क्या है? अगर if you want to see, what I suggest is to start with 3 days of water fasting, 3 days of juice fasting, then 3 days of raw diet, and you can, if you want, you can have 1 grain in the dinner or in the lunch also. अगर आप चाहें तो 1 grain आप lunch में ले लें या फिर 1 grain dinner में ले लें, तो वो आप कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट डे आपको जो खाना है आफ्टर जूस फास्ट, फर्स्ट डे ग्रेन आपको डिनर में लेना है, बट द नेक्स्ट 2 days
you can switch having grain meal instead of dinner time to the lunch time. This you can make adjustment. Yes. So it's on your comfort basis. Some people need food, heavy food in the dinner time. तभी उनको नींद आती है, ऐसा भी होता है. So you can adjust accordingly. So this is what I suggest. But अगर आप water fast नहीं रख पाना चाहते हैं, आपको पहले से ही लग रहा है नहीं मैं water fast नहीं रख सकती, तो आपको juice से ही शुरू करना है. तो first 3 days you take juice fast, then the next 3 days you can go on the raw diet, and then slowly you can, you know, as many days as you can keep up. फिर आप धीरे से सॉलिड डाइट पे आ सकते हैं, नॉर्मल खाने पे. तो नॉर्मल खाना भी आप एकदम से ऑयली और ये सारा प्रोसेस्ड खाना नहीं शुरू करेंगे, रिफाइंड फूड. यू शुड ट्राई टू, यू नो, आगे भी आपके जो 3 दिन हो जाएंगे रॉ डाइट वाले, उसके बाद जो आप 10th डे से खाएंगे, तो मेक श्योर यू हैव सिंपल मील ओनली. ऐसे एकदम भारी भारी दाल वगैरह भी नहीं लेना है. मूंग दाल इज बेस्ट, तो मूंग दाल आप ले सकते हैं, बट अदर दाल्स तो अवॉइड करें फॉर फ्यू डेज. मूंग दाल का आप ले सकते हैं. या सो ट्राई टू हैव एज मच सिंपल नॉन रिफाइंड आइटम्स. रिफाइंड आइटम्स बिल्कुल ना यूज करें खाने में. नाउ यू आस्क क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं पूछें, एंड इन द ग्रुप आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स. So Swati, can I ask now? Yes, Nidhi. So since, so for example, I'm willing to keep 9 days ka fast. Okay. Now, since you have told Jal Niti, and Jal Niti I've been doing, but these days I've started oil pulling also. So I am doing oil pulling since a month's time, right? Okay. So and you're suggesting to do basti as well. तो ज़्यादा cleansing हो जाएगा. So what would you suggest? Shall I stop oil pulling for these 9 days? Oil pulling will not impact any. ऐसे कुछ ऐसे impact नहीं करेगा. It will. I mean, you can continue as you're already continuing from 1 month. So yeah, no problem. You can continue. So basti, oil pulling, and your jalneti is not an issue at all, right? Yeah, no issues. You can. Okay. The second question is, so I am like whenever I take fruit or fruit juices, so I am a kapha pravati, okay, prakriti. So what happens? I get a lot of mucus when I have lot of fruits. So what the other option would you suggest? Like if I'm having fruit first 3 days juice diet, yeah, 1 day only if I'm if you are kapha pravrati, then you take only vegetable juices. You avoid taking this fruit juices. Fruit juices आप avoid करो. Okay, so vegetable juices and vegetable juice और उसके अलावा सूप भी combination कर सकते हैं क्या? Juice fasting if we are doing, then we should not cook any other vegetable or fruit. वो हमको जैसा है वैसे ही use करना है. But if you are on this raw diet, so raw diet में you can have juices as you want. You can have soups. You can have those things. Okay, and ये बीच-बीच में जो जीरा पानी और ये सब हम लोग लेते रहते हैं, can we have it? Which one? जीरा पानी बीच-बीच में, like I do take जीरा अजवाइन का पानी कभी-कभी. You can take that during raw diet. Raw diet जब हम करेंगे उस टाइम पे आप ले सकते हो. But in juice fasting, try to have plain water if you are thirsty. अगर आपको प्यास लग रही है तभी आप पानी लें और सादा पानी लें, other than these juices. और जबरदस्ती खुद से हमको जैसे आदत होता है ना कि बहुत सारा पानी पीने की, एक टाइम पर्टिकुलर फिक्स रहता है, we drink more water during that time. So avoid drinking simply. Drink with with awareness. Whenever you are thirsty, then only you drink. And again you have to sip slowly, धीरे धीरे पानी को लेना है. Any other question? Yeah, thank you so much. I have a question, Swati. So during if we are doing raw fasting and you said that we could take steamed vegetables, are we allowed to add salt? Salt, if you are starting with 1 grain meal, then you can add salt. Otherwise, don't add salt. होता है ना, नमक जैसे ही खाते हैं फास्ट फूड जाता है. If you want better effect, try not to have salt. Add lemon if you want to add lemon. तो वो आप कर सकते हो. But अगर avoid करोगे तो it is best.
इन केस अगर नहीं हो रहा है बिल्कुल और वो लेना ही है तो यू कैन ऐड लिटिल सॉल्ट, बट आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड सॉल्ट, वो मत लो। अगर ग्रेन स्टार्ट किया है तो देन अगेन यू हैव ओपन योर फास्ट ऑलरेडी, तो यू कैन हैव ओपन मीन्स ऑलरेडी वी आर डाइट चेंज किया हमने। तो डाइट जब हमने चेंज किया तो हम क्या ले रहे हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही ले रहे हैं। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं दे आर अगेन नेचुरली डिटॉक्सिफाइंग होते हैं वो, तो वो डिटॉक्स में हेल्प करते हैं, हमारी कोलोन को क्लीन करते हैं, फाइबर्स होते हैं जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर्स होते हैं, तो वो हमारे को क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। बट जैसे ही ग्रेन लिया, तो ग्रेन क्या है, ग्रेन मतलब पूरा आपका डाइजेशन चालू हो जाएगा उन चीजों का, और डाइजेस्टिव फायर ज्यादा यूज होगी उसमें, को पचाने में बहुत मेहनत लगेगी, तो फिर इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, तो यू कैन हैव सॉल्ट, सो नो प्रॉब्लम देन दैट। या And one last question. So I'm also planning, I have never done fasting ever. So I'm also planning to, I will aim to do the 9 days fasting, but will aim for 3 days of water fasting at first. Yesterday you said that we may, although this is not the main aim, but we may lose around 3 to 5 kgs by the end of the fast. Yes. And it may happen that we will gain most of it back, but it can be prevented with some controlled measures. For you, if you are, that is what I wanted to come to the end at that point, that you are already following the Sattvic diet which I have given to you, so you don't have to worry, you will be able to retain that weight loss. So But again, yeah. But since last 10 days, I have to admit that yeah, it did not happen a lot. Okay, so if you will follow it, then only it will happen. So this you have to take care. अगर आपको वो retain करना है जो weight loss हुआ है, उसके लिए you have to take care of the diet which you will take after fasting. तो वो कैसे करना है? Okay. So you already know this, but for others they can take the Sattvic diet plan. उसमें क्या है, आपको पूरा ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा कि कुछ बदल जाएगा. It is all coming from the scriptures, चांदोक उपनिषद, अष्टांग हृदयम, तो सारा आयुर्वेदिक जो नॉलेज है, भगवत गीता, तो उसी के बेसिस पे जो है ये डाइट बनाया है. तो वो मतलब बनाया ये hatha yoga pratipika. So these referring to all these texts, systematically जो डाइट बनाया है as per Indian tradition, तो वो अगर आप फॉलो करेंगे इसके बाद, so you will be able to retain your health in a better way. अगर वापस वही लाइफस्टाइल फॉलो करने लग जाएंगे जो जिसमें आपका बहुत सारा जंक फूड भी आ जाता है, प्रोसेस्ड आइटम्स आ जाते हैं, तो then it will be difficult for you to retain your health. And if you are in this path of yoga, if you want to start yoga classes, अगर आपको अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करना है, if you are finding this knowledge, अभी आपने जो कल का सेशन अटेंड किया, अभी का सेशन अटेंड किया, आपको लग रहा है कि कुछ नॉलेज है जो आप यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, तो I would suggest to all of you, those who have never been into yoga, join the yoga classes. 3 demo sessions are free for everybody. You all, those who have not done yoga and want to experience, join the yoga class. Evening के टाइम पे भी है, मॉर्निंग के टाइम पे भी है. मॉर्निंग टाइम इज 7 to 8 AM and evening time is 6 PM to 7 PM. तो जो भी कंफर्टेबल है, आप मुझे मैं आपको लिंक शेयर करूंगी. जस्ट ज्वाइन द डेमो सेशंस और एक्सपीरियंस करें. सैटरडे संडे को ये सारी क्रिया ऑलरेडी मैं सिखाती हूँ. ये कोमल and everyone are already experiencing. Most of them in my yoga class, they have lost 3 kgs of weight. 2 to 3 kgs सबने lose किया है in the first month, following the diet plan, following the this detox. So this is very effective because I'm not I have not created anything. I'm just sharing what is already shared by our ancestors, जो हमारे को वेदास उपनिषद में already share करा चुका है, तो वही knowledge I am sharing to others. So that is why everyone is experiencing all the benefits. तो जो लोग भी interested हैं, you can register, and if you align, I already shared the vision of One World Yoga, and if you are aligned with the vision, so I would request you all to share with others also, क्योंकि ये knowledge जो हमको मिलेगी, जिसका हम benefit ले रहे हैं, जो already ले रहे हैं लोग और जो लेंगे, तो you would be happy that others can also have this experience. So this is, if you feel so, I would request you all to please share it with your friends and family. जरूर share करें और उनको भी लेकर आएं इसमें. आप लोग भी जुड़े और उनको भी लाएं. Yes.
So we will be having this group. हमारा group जो है उसमें पूरा हम active रहेंगे, पूरा अपने fast की सारे जो है updates डालेंगे. और अभी सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सबसे पहले कैसा रहा आपका experience ये course का, just please share it in the WhatsApp group because this will motivate others also. Yeah, ये every appreciation, every feedback matters. वो share करना है, and then I will be sharing you all the list of the plans that we have to follow water fasting में और juice fasting में. और जो भी air fasting में interested है contact करेगा मुझे personally phone करके, I will guide क्या करना है. Yes, because I will be needing your medical information. सब लोगों ने form नहीं fill किया है, so I will be able to guide them better. और इसके अलावा I will be sharing you the documentary on fasting. तो वो फास्टिंग का डॉक्यूमेंट्री सबको देखना है. Any other questions? Dee, I have few doubts. हाँ ललिता बोलो. Dee, I guess I'm a kapha person. I feel a lot of uneasiness in my throat. So recently I've started doing the Vamana very frequently, Vamanadati very frequently. And you suggested that Vamanadati should be done a day before the fasting. Yes. But can I do it on the day of the fasting also if I feel the uneasiness? Yes, if you feel acidity, that kind of uneasiness, then you can do it. Otherwise, you will be doing neti and you will be doing enema. तो enema से भी जो कफा है निकल जाता है, colon से भी कफा clean हो जाता है. So just see if you experience some uneasiness, just talk to me. Group में share करना या मुझे personally call करके बताना, then I will tell you if you can take it or not. क्योंकि जिनको hyper acidity है, they can only take Vaman during the fasting time. And regarding that, I've abused my intake of water. Like usually also I try to drink more and more of water. Recently, I tried to do the fast on the Ekadashi. I was successful. I didn't do any of the Kriyas. I didn't know that. But I felt the acidity in my stomach. So whenever I'm hungry or whenever I feel the acidic feeling in my stomach, I used to drink water. So that should be avoided and I should drink water only when I'm thirsty, right? See, if you feel hungry, you can drink water. If you feel thirsty, you can drink water. Water is the only meal if you are doing water fasting. तो वो पानी को ही खाना समझ के खाना है, पानी को ही पानी समझ के पीना है. But अगर acidity बहुत ज़्यादा हो रही है, then you can do वामन क्रिया. तब वामन कर सकते हैं. हल्का फुल्का है, ले सकते हैं, ऐसा है तो then you just have water. But water कैसे लेना है, अभी क्या करते थे, पूरा भर के ले लेते थे. But when you will sit down and sip by sip when you will be having it, आप इतना सारा पी ही नहीं पाओगे. You will be okay with in one glass only. So that is more important, that whatever you are having it, बैठ कर आराम से धीरे धीरे with awareness you take it. So that is more important. Okay. Okay. Also Sutra Niti can be done? What? Sutra Neti? Yes, you can do Sutra Neti. Yeah. Okay. Neti can be done. Yeah. Yeah, Swati, I have a question. Ganga. Haji boliye. Ganga. So in the juice fast, can we use buttermilk or milk? No milk products. No milk products. बिल्कुल भी नहीं लेना है milk products because ये जो है, this is how it is. Okay, you can't take milk products. Again, milk is अभी milk का जो purity है, milk की जो quality है, जो available होती है, that is again it is not up to the mark. Plus जो हम करना चाहते हैं, what we want to attain, we can attain it in better way when we are having vegetable juices, fruit juices. So that benefit we may not get. But yeah, there are some kind of fastings. अगर आप योगानंद परमहंस का, there is a book, Yogi, autobiography of Yogi. So he has mentioned about this fasting with only milk, fasting with only buttermilk. तो वो भी होता है, but that is different system of fasting. तो अभी जो हम कर रहे हैं, जो as per Ayurveda naturopathy, ये ही होता है. Fasting, water fasting, and this juice fasting. And other than this, we can adopt a healthy diet. और इसके बाद अगर आप लोगों को अपना normal diet के लिए भी guidance चाहिए है, तो you can take the Sattvic diet plan. It is very, very affordable and it is worth taking it.
तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी, मैं उसके बारे में और गाइड करूंगी. यू कैन जॉइन द क्लासेस. हम लोग मंडे ट्यूसडे को जस्ट आफ्टर द योगा सेशन वी कंसल्ट डाइट. तो वो इट इज वेरी इफेक्टिव एंड इट इज द नॉलेज दैट विल हेल्प योर होल फैमिली. पूरी फैमिली को आप देख सकते हैं एंड इट इज द नॉलेज दैट विल स्टे विथ यू फॉर एवर विथ एंड यू कैन पास इट ऑन टू योर किड्स. तो दिस इज वेरी इफेक्टिव. तो वो उसमें कोई आपको ये नहीं मिलेगा कि ये अब मुझे ये गलत चीज है, ये चेंज करनी पड़ेगी, ये सस्टेनेबल नहीं है. देयर इज this is what the benefit of that type. So if you are interested, please contact me later. Yes. So it is already 8:23. सबका डिनर, जिन लोगों ने डिनर नहीं किया है, डिनर लेट हो जाएगा. कोई और क्वेश्चंस है क्या? अदरवाइज यू कैन व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए व्हाटएवर क्वेश्चंस, लेटर भी आके आपको आगे आते हैं तो विल कंटिन्यू ऑन व्हाट्सएप. यस. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. आप सब लोगों ने ज्वाइन किया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वांटेड टू शेयर दिस नॉलेज विद ऑल. द फीस you already know, it was like nothing. It is just for a commitment. The main purpose of this course is to just share this knowledge because we are all so much used to having doctors and medicines in our life for treatment. And this fasting can help us individually अपने आप को use करके अपनी take care कर सकते हैं. So this is important. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you.